Very good morning to all the students of class 10th. Very welcome to all of you in your maths class. And yesterday we have started our new chapter, that was quadratic equation, chapter number 4. And I hope you people have done the concept of quadratic equation, what we studied yesterday. See, we have gone through the topic to find out what is the meaning of quadratic equation, what is the difference between quadratic equation as well as quadratic polynomial. We have yesterday found that what is the general formula for our quadratic equation, ax square plus bx plus c, that is equals to 0. Apart from this, we have also discussed to find out the methodology to check the nature of the given equations. ax square plus bx plus c equals to 0 में हमारे पास x की जो भी वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी x की, उनका नेचर कैसा होगा. नेचर मीन्स the values of x may be real but unequal. The values of x, the two values of x may be real and equal, and it is also quite possible that the two values of x are non-real. The values of x are known as roots of the quadratic equation, or we can also say that solutions of the quadratic equation. This thing we have discussed yesterday, and we have also gone through the discriminant. This is our discriminant, b square minus 4ac. This b square minus 4ac is the discriminant. अगर हमारे पास b square minus 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो दो वैल्यूज आएंगी, दोनों रियल वैल्यूज होंगी. नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, रूट में भी हो सकती है, लेकिन रियल नंबर्स होंगे और अनइक्वल होंगी. अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तो भी हमारे पास x की दोनों वैल्यूज रियल नंबर्स में होंगी, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, रूट्स में भी हो सकती है. उसके साथ साथ b स्क्वायर माइनस 4ac में x की दोनों वैल्यूज बराबर होंगी. वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द एग्जाम्पल रिलेटेड टू दीज थिंग्स. और अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आ रही है, 0 से कम आ रही है मतलब -1 -2 -3 ऐसे करके कुछ वैल्यू आ रही है b स्क्वायर माइनस 4ac की, देन वी विल से दैट द रूट्स और द वैल्यूज ऑफ x आर नॉन रियल. और ऐसी सिचुएशन में वी विल नॉट गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्यूशन हम कब करेंगे, x की वैल्यू हम कब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जब इन दो वैल्यूज को हम फॉलो करेंगे. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है देन वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन, एंड इफ द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 देन आल्सो वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन. सो yesterday we have discussed all these things. Apart from this, only one conceptual thing is left with us. Today we are going to discuss that particular conceptual problem of quadratic equation. See, we have already studied that any quadratic equation can be solved by middle term splitting. We have already seen that any quadratic equation can be solved, or the value of x can be determined with the help of middle term splitting. यहाँ पे हम लोग middle term splitting के अलावा कुछ और रास्ता ढूंढने जा रहे हैं. उस रास्ते पे जाने से पहले let me remind you about 3 formulas. We have already gone through these formulas. A plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab. We have already gone through a minus b whole square, that stands for a square plus b square minus 2ab. And apart from this, the square formula we have already studied is
a square minus b square equals to a plus b in the first bracket and a minus b in the second bracket. So while getting the solution of a quadratic equation by completing the square method, we will be using these formulas. This is the completing the square method. हम अपने quadratic equation को इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे. हम उसको कोशिश करेंगे कि किसी तरह से वो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाए, या कोशिश करेंगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाए. और इन दो फॉर्मेट में लाने के बाद हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी बना करके, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर x. सो द टॉपिक इज solution of quadratic equation by completing the square method. देखिए, let me remind you first thing that our objective is to make our quadratic equation in the form of a square plus b square plus 2ab, या फिर in the form of a square plus b square minus 2ab. यानी हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले कोशिश करेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाए या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाए. जब ऐसा हो जाएगा then we will go for this particular formula. अब अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में के फॉर्मेट में लाने के लिए हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चेंजेस करेंगे. ऐसे चेंजेस करेंगे जिनसे उसकी वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े. ऐसे चेंजेस करेंगे जिनसे उसकी वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े, उन चेंजेस का इफेक्ट ना आने पाए. कैसे ऐसा हो सकता है? हो सकता है अगर हमने कुछ वैल्यू अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐड की तो उतनी ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा. जितना हमने ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, या जितना हमने सब्ट्रैक्ट किया उतना ही हमने ऐड भी कर दिया. दूसरी चीज़, जितने से हमने उसको मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड भी कर दिया, या हमने उसको जितने से डिवाइड किया उतने से ही हमने उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया. तो दैट विल बी कैंसिल्ड एंड बिकम 1. यानी 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको पहले से पता है. सो हम कोशिश ये करने जाएंगे कि हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ले आए बाय एडिंग or subtracting something to it in such a way that it do not cause any change in the value of our quadratic equation. This thing I would like to explain with the help of an example. इस चीज़ को मैं आपको एक example की help से explain कर रहा हूँ. See, let us suppose we are having one quadratic equation with us, x square plus 4x minus 1 equals to 0. We are having one quadratic equation, x square minus 4x plus 1. See, here we are having minus 4x and plus 1. अब हम लोगों को इसे अपने a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में लेकर के आना है. आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमको हमारे फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमको हमारे फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. जैसे हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ पे
एक्स स्क्वायर की टर्म रखी हुई है, हमने इसको एक्स स्क्वायर में रख दिया, एक्स का होल स्क्वायर। चलिए आप कह सकते हैं कि सर हमको पहला स्क्वायर का टर्म मिल गया। फिर क्या चीज़ है, माइनस का 4x है, x की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे ये a है तो a का स्क्वायर बना, और दोबारा a जब आया है तो उसकी पावर 1 है। यहाँ पर भी x है तो x का स्क्वायर है, और दोबारा x आया है तो उसकी पावर 1। ये आप इसको प्लस 2ab या माइनस 2ab बना सकते हैं। तो इसके पहले क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का, यानी हम इसको माइनस 2ab बना सकते हैं। इस तरह से बनाना है कि उसकी वैल्यू चेंज ना होने पाए। फॉर्मूले के हिसाब से माइनस होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल माइनस है, लगा दिया। फिर फॉर्मूले के हिसाब से 2 होना चाहिए, ये 2 रख दिया। फिर फॉर्मूले के हिसाब से a होना चाहिए, a का मतलब क्या, ये a का काम कर रहा है यानी x होना चाहिए, रख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है 4x है, यहाँ अभी तक कितना आ चुका है 2x आ चुका है, यानी एक बार 2 से मल्टीप्लिकेशन और होनी चाहिए इसमें, तो ये बन जाएगा 4x, x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस 4x मैंने इसको बना दिया। कैसे बनाया, इसी 4 को ब्रेक करके, ये 2ab का काम कर रहा है, दिस इज आवर a एंड दिस इज आवर b एंड दिस इज आवर a स्क्वायर। हमें a स्क्वायर मिल चुका है, हमें 2ab मिल गया है, साथ में क्या लगा है प्लस 1 लगा दिया। देखिए वी आर हैविंग नाउ आवर a स्क्वायर, ये है हमारे पास में, हमारे पास माइनस 2ab है, ये रहा। हमारे पास प्लस का b स्क्वायर नहीं है, b की वैल्यू है कितनी, b की वैल्यू ये 2 है, तो b स्क्वायर लाना पड़ेगा। b स्क्वायर लाने का मतलब कि 2 का स्क्वायर लाना पड़ेगा, और 2 का स्क्वायर हमें लाना है तो कैसा ले आना है, पॉजिटिव में। तो हम यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, ये मैंने अपनी तरफ से किया है, आई हैव एडेड 2 स्क्वायर ओवर हियर, और जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। 2 स्क्वायर मैंने ऐड किया और 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, जिससे कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया। हमने क्या किया अभी तक में, हमें x मिला था उस स्क्वायर के फॉर्म में, तो हमने उसको कहा कि सर ये हमारा a है और ये उसका स्क्वायर, a स्क्वायर मिल गया, ये रखा हुआ है, a स्क्वायर मिल गया। फिर कहा कि सर माइनस लगा हुआ है और पावर 1 का है, तो माइनस लगा है और a जो है पावर 1 का, यानी ये 2ab बन सकता है नेगेटिव का, तो ये हमने 2ab के फॉर्मेट में इसको बनाने की कोशिश की, ऐसी कोशिश की कि उसकी वैल्यू न बदलने पाए। तो सबसे पहले फॉर्मूले में 2 होता है, हमने लगा दिया। फिर a होता है, a का मतलब x, भाई a का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर, यानी a की वैल्यू कितनी x लगा दिया। अब वैल्यू में कितने का डिफरेंस आ रहा है, वी आर हैविंग 4x हियर एंड वी आर हैविंग 2x हियर, तो इसको 4x बनाने के लिए हमें एक बार 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, ये रहा। तो ये बन गया हमारा माइनस 2ab। हमको हमारे a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर के b की वैल्यू मालूम चल गई, जो कि 2 के बराबर है। और ये प्लस 1 जो रखा था हमने चुपचाप इसको वैसे ही रख दिया। हमें b स्क्वायर चाहिए था, भाई a स्क्वायर मिल गया, माइनस 2ab मिल गया, b स्क्वायर बाकी था, तो b की वैल्यू कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस कर दिया हमने, क्योंकि प्लस में चाहिए था, और जितना हमने प्लस किया उतना ही हमने माइनस भी कर दिया। चेंज क्या हुआ, कुछ भी नहीं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. Now see here, this is our x square, this is our minus 2ab plus b square यानी 2 का स्क्वायर। चलिए फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 लगा दिया, और माइनस 2 का स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर, हमने प्रॉपरली इसको लिख लिया। देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज a, दिस इज a, और ये b का काम कर रहा है 2, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज a माइनस b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचा है, प्लस 1
minus 4 equals to 0. We are having plus 1 and minus 4 equals to 0. We can say it is x minus 2 whole square plus 1 and minus 4 will become minus 3 equals to 0. So this will become x minus 2 whole square minus 3 equals to 0. आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले इन दो फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे. जब इन दो फॉर्मेट में आ जाएगा देन वी विल अप्लाई दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ चुका है. a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया है, माइनस यहाँ पे 3 है, जबकि a स्क्वायर के बाद में हमें स्क्वायर की टर्म चाहिए. तो हम इस 3 को स्क्वायर की टर्म बनाने जा रहे हैं. कैसे किया? x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये वाला माइनस ये रखा. 3 को अगर हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो वी कैन राइट इट डाउन √3 का स्क्वायर. √3 का स्क्वायर का मतलब क्या? √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल्स टू 3. यानी ये √3 का स्क्वायर और ये 3 दोनों सेम है. हमने सिर्फ इस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए 3 को √3 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया. सो इट इज नाउ इक्वल्स टू 0. अब ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज a एंड दिस इज b. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. पहले ब्रैकेट में a प्लस b, तो पहले ब्रैकेट में ये रहा हमारा a और प्लस b. दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो ये रहा हमारा a माइनस एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 2 प्लस √3, x माइनस 2 माइनस √3 दैट इज इक्वल्स टू 0. अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले टर्म में बोलेंगे कि चलो मान लेते हैं कि ये वैल्यू 0 है. भाई दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है ना. तो पहली सिचुएशन में हम ये कंसीडर करेंगे कि ये 0 है. इफ x माइनस 2 प्लस √3 इज 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? ये 2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा, और ये √3 उधर जाएगा तो नेगेटिव. ये हमारे पास x की पहली वैल्यू आ गई, द फर्स्ट रूट. दूसरी बार में हम कहेंगे कि हो सकता है ये 0. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट x माइनस 2 माइनस √3 इज 0. इफ x माइनस 2 माइनस √3 इज 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू ये 2 उधर जाएगा, माइनस में था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा. ये √3 उधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा. ये हमारे पास x की सेकेंड वैल्यू. सो द फर्स्ट रूट या फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 माइनस √3 एंड द सेकेंड सॉल्यूशन इज 2 प्लस √3. सो अगर हम इसको मिडिल टर्म से भी सॉल्व करते तो भी हमारे पास यही दो रूट्स आते, x equals to 2 minus √3 and x equals to 2 plus √3. So this was the entire methodology of getting solution of quadratic equation by completing square method. इसमें हमने कुछ भी नया नहीं किया है, कुछ भी साइंटिफिक नहीं था, केवल मैथ्स अप्लाई की है और कहा है कि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर में प्रॉपर आइडेंटिफाई करके चेंज करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, जितना ऐड करेंगे उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा. मैंने यहाँ पे वही किया हुआ है. यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पर भी देखिए पावर a की 1 है, a का स्क्वायर है और a की पावर 1 है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर है और x की पावर 1 है. बस यहीं से इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, और हमने उसको फटाफट चेंज करने की कोशिश शुरू की और हमको हमारा b मालूम चल गया. जब हमारा b मालूम चल गया तो हमने b स्क्वायर को ऐड किया और b स्क्वायर को माइनस भी कर दिया, एंड रेस्ट द एंटायर मैथमेटिकल टर्म इन फ्रंट ऑफ यू. सो it is my request to all of you to do this methodology by yourself. Take the help of
this video and the PDF you are getting today, आप उसकी हेल्प लीजिए, देखिए, समझिए और अपने आप से करने की कोशिश, कम से कम 5 क्वेश्चन ज़रूर करिए. You are getting in your homework this particular work, solution find out करिए with the help of completing the square method. So I hope you all people are doing these works in your school copies, your video lectures as well as the PDFs along with the homeworks that has to be done in your school copy. Practice more and more and go through the concepts properly. अगर concept पक्का रहेगा then only you will be able to perform the exercises of these chapters. So this is all for today from my side. See you all of you tomorrow. Till then, very best of luck to all of you. Stay safe and stay home.